मैं यही कह रहा हूँ कि चौधरी ट्रुथ सीकर बनना कोई आसान काम तो नहीं ना। बिल्कुल 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 बड़ी मेहनत करनी पड़ती, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। तो नजीर साहब तो चेक कर लो, आवाज आ रही नजीर साहब बोलो। नजीर साहब हेलो हेलो तो हाँ जी नजीर हेलो की तरफ मेरा ख्याल सिग्नल्स का मसला है, इधर मेलबर्न में हेलो। बारिश हो रही है ना। नहीं, नजीर साहब मेलबर्न में होते हैं? हाँ मेरे ख्याल में मेलबर्न में ही है ये बारिश यहाँ पे हो रही है। सलामकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी जी अच्छा क्या हो गया कोई वो मैं आपकी आवाज आ रही थी मेरी नहीं जा रही थी, क्या मसला था? चलो कोई गल नहीं, हुण आ रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम नजीफ भाई। चौधरी साहब की हाल है? अल्लाह दा करम नजीफ भाई, दुआएं आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। ਉਹ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵਲੀਦ ਭਾਈ? की होया? ਮਾਂ ਨਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ, ਜਮਾਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਹੋ? ਵਾਲੇ। ਮਾਂ ਨਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ, ਮਾਂ ਨਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨਹਾਨੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? डिफेमेशन ਦਾ ਕੇਸ। ਅੱਛਾ ਡੈਫੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ। ਅੱਛਾ 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 ਇਦਾਂ ਕਹੋ ਨਾ, ਡੈਫੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਐ ਡੈਫੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ? ਕਿਹੜਾ ਡੈਫੀਮੇਸ਼ਨ? ਡੈਫੀਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਹੀ। डेफिनेशन ਉਹ ਡੈਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਫੀਮੇਸ਼ਨ। ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਲੀਦ। तो ਸਹੀ ਸਹੀ। किथे किथे करन लगे, मतलब कि वो ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ? ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ अच्छा तो केस तो मेरे ख्याल है फिर नजीरे साहब प्रेजेंट करेंगे। ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਖੋਲਦਾ? ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਖੋਲਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਛਾਪੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੰਜ ਖੋਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇ? आहो ਆਈ ਵਾਹ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬਾਈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਤਬਲੀਗੀ ਮਵਾਦ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਵੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਗੋਂ ਪੱਲਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ। ਪੱਲਿਓਂ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਭਾਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਾਜੀ। है कि जब अमर नजीर आए तो उतर जाए ना, आपने दाखलों के का नाराज ना कर। अच्छा जी, ओके जी, ओके जी। मैं तेरी गल का गुस्सा नहीं करना यार, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਜਬ ਭਾਈ ਆ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣੇ ਇੰਜਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਸਫੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਜ਼ੀਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਅਨਸਰ ਦਾ ਪਦੈਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਦੈਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਅਨਸਰ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ऑफिशियल मौकफ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ आंसर बाद में जो है ना वो अहमदी हुआ है। ਉਹ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਰੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਵਲੀਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਭੇ ਨੇ ਪਦਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਰਾਬਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ?
ਨਹੀਂ ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਹ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬਰਾਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਹਰहाल मेरा कि मैं तशफी रह गई है थोड़ी कि सफिया बाजी ने मुकम्मल जवाबात नहीं दिते ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਐਮਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਰ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਲੱਸੀ ਬਣਾਈਏ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਫਾੜਨਾ, ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਤਾਰਫ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਆਣਗੇ ਕਿ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕੀ। और नजर म्यूट करी यार एक मिनट। और नजीर साहब गल है वे कि नासिर भाई का इंटरव्यू वास्ते नासिर भाई ਦਾ रज़ा साहब ने नहीं ना ਮੰਨਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ, ਨਾਦਰ ਭਾਈ ਦਾ ਕਰੋ, ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਡਨੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਯਾਰ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ। ਸਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਟੁਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਟੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸ਼ਫੀ ਬਖਸ਼, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਵਲੀਦ ਭਾਈ 4-5 ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ, ਇਹ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬਰੋਡ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। नहीं इसे मतलब बैठे की रहना तुसी एक अच्छा एक इंटरव्यू करना कोई गलत गल ते नहीं, अच्छे अच्छा करदे हो, अच्छी गल करदे हो, अच्छे सवाल पुछदे हो ते अच्छी गल तुसी करोगे। मैनू बड़ा बहरहाल इंटरव्यू अच्छा लग्या सी पर ओदे च मैनू थोड़ी ऐसी तशफी है अच्छी गल दी नाल तायद करदे हो ना थोड़ी जही। ते मेरी आवाज ते जा रही है, सारे सुन रहे ने, मैसेज जा रहा है, तुसी बेशक टुर जाओ या अच्छा काम तुसी शुरू कीता है, अच्छे लोगों दा तुसी एमडी जेड़े हैं ना उनदा इंटरव्यू करो ते अकीदा भी पुछो ते जेड़े तजर्बात ने या जेड़े निजाम है जमात दा ओनू भी जेड़ा ना खुल के सामने दुनिया दे सामने आएगा। अच्छे लोगों च केड़े-केड़े लोग ने? मतलब अच्छे तो मुराद यही है ना कि जेड़े हुण तुसी पहला इंटरव्यू ओदे बंदे दा कीता जेड़ा मुतनाज़ब बनिया ते ओ फिर जमात नू की प्रेजेंट करेगा। मैं ना इस टाइम तुसी दी भी ओनू इंतखाब कीता है ना, मैनू ये समझ लगी भी जेड़ा मुतनाज़ब बंदा बनिया दा ओदा तुसी क्यों इंतखाब कीता? ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੀਆਂ 49 ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਅਸਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਅਸਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਵੇ ਮਲਕ ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਬੜੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਓਹੋ ਭਾਈ ਟੀਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਟੀਕੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਐਂਡ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਲਕ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम राजू भाई की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? ਅੱਛਾ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਸੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ? अच्छा राजू भाई वो मसला वाला कि नजीर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ, ਮਸਲਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਟਿਕ ਟਾਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਹਿਮਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜੇ ਗੰਦੇ ਛਿੱਟੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ सारे भरावां दे नाल। देखो जिन्ने भी आते हैं कहते हैं आकर कि हम एमडी हुए हैं, किताबें पढ़ी हैं, मिर्ज़ा साहब का किसी ने आके लाहौर का लेक्चर सुना है, किसी ने सियालकोट का सुना है और हम एमडी हो गए हैं। और जब इनको कहते हैं आओ मिर्ज़ा साहब की किताब पर बात करते हैं, कहते हैं मिर्ज़ा किताब पर बात ही नहीं, जिस चीज़ को आप लोग पढ़ कर एमडी हुए हो उस पर बात करने से क्यों घबराते हो? अंसर रज़ा साहब यही कहते हैं कि उस पर बात नहीं होगी, तो ये फिर क्या है? जो आप लोग पढ़ के एमडी हो गए, हमें भी बताओ, पढ़ाओ हमें भी। यार ये उस्मान साहब आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही है।
कि आपके लिए मिर्जा साहब हुज्जत नहीं है, आप मानते नहीं है, आपका बिलीव नहीं है। हमारा और आपका बिलीव कुरान और हदीस पे तो है, वो हमारे लिए भी हुज्जत है, आपके लिए भी हुज्जत है। इसलिए वो कहते हैं कि आप उधर से जब फैसला हो जाएगा तो इधर आपको क्या मसला है, क्या परेशानी है? मिर्जा साहब की किताबों पे बात क्यों? मिर्जा साहब की किताबें तो कुरान और हदीस हैं सब, तो आप कुरान और हदीस पे क्यों नहीं जाते? जहाँ से बुनियाद है उसको क्यों छोड़ते हैं आप? भाई हम कहते हैं बुनियाद की तरफ चले जाओ बस। जी सर, मेरा सवाल समझ आया था आपको? मेरा सवाल ये था कि जितने भी कन्वर्टेड हैं वो आके ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब की तहरीर पढ़ी और मिर्ज़ा साहब का लेक्चर लाहौर सुना सीकर ने, ये ट्रू सीकर है इसने, और वो उसने अहमदियत कबूल कर ली। तब जब हम इसको कहते हैं मिर्ज़ा साहब की किताब पढ़ाओ, ये मिर्ज़ा साहब की किताब में ये लिखा है, वो कहता है इसको छोड़ो, तुम कुरान हदीस पढ़ाओ। हम फिर कहते हैं कुरान हदीस में मिर्ज़ा साहब दिखाओ, कहते नहीं छोड़ो मिर्ज़ा साहब की किताब पढ़ाओ। यार ये जो जंपे आप इधर लगाते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप एक बंदे को माने हैं और हमें भी उसको मनवाना चाहते हैं तो उसकी बात होगी ना, उसकी किताब की बात होगी। जैसे आप आप लोग पढ़ के उसको अहमदी हुए हैं, हमें भी वो पढ़ाओ जो आपने पढ़ा, उस पर बात कर लेते हैं। बस सिंपल सी बात है, इसको बोलो लेक्चर लाहौर पे बात करे आकर ऊपर, लेक्चर लाहौर पे जितना इसके पास मुतासर कुन बयानात थे मिर्ज़ा साहब के, उस पर बात कर ले, हमें भी कायल करे इसके ऊपर। कुरान हदीस का तो ताल्लुक नहीं है, इसने कुरान हदीस पढ़ के मिर्ज़ा साहब को माना है। पूछो इस ट्रू सीकर से। साहब जो मिर्जा साहब ने लिया है वो सब कुरान और हदीस से लिया है। हदीस पे तो खुद सवाल उठाता है। मिर्जा साहब ने कोई नई बात पेश की होती तो फिर आपका नजीर भाई, आपका सवाल दुरुस्त था। नहीं सुने नजीर भाई, अगर उस्मान मिर्जा के साहब कहने का मतलब ये है कि मिर्जा साहब की किताबें पढ़ के जो बंदे भी अहमदी हुए हैं तो फिर उन किताबों पर बात करेंगे ना, वरना कुरान और हदीस पढ़कर तो बाकी जो है वो नहीं हुए अहमदी, तो जाहिर है उसमें तो बात नहीं हो सकती। साहब किताबें पढ़ के उन्होंने कुरान और हदीस को सच्चा वो किया है कि हाँ ये बात दुरुस्त है, तो आप डायरेक्ट कुरान और हदीस पे चले जाओ। आप मिर्जा साहब को आप जब हुज्जत नहीं है आपकी, अगर पहले हुज्जत माने कि हाँ उन्होंने दुरुस्त कहा, फिर उधर से आपको तस्दीक करवा देते हैं। जब नहीं मानते हैं तो आपको कुरान और हदीस से तस्दीक करा देते हैं कि मिर्जा साहब सच्चे हैं, जो तालीम लाए हैं, जो बात नहीं नजीर भाई, वो कुरान और हदीस से हम आपको बता देते हैं, तो फिर बात खत्म। नजीर भाई जिन्होंने मिर्जा साहब की किताब मान के तो जमात मानी है, उनके लिए हुज्जत तो है ना। तो जिस बात पे उन्होंने जमात को माना है उस पे ही बात होगी ना। नहीं है ना भाई, हमारे लिए अहमदी के लिए है, पर जो मुखालिफ है, जो सामने खड़ा है, उसकी नहीं है, तो उसको हम फिर मिर्जा साहब किताबों से कैसे समझाएं भाई? अब आप तो इल्जाम लगाते हो ये तो मिर्जा साहब की तालीम है, नई तालीम आ गया, नया नबी आ गया, नया मजहब आ गया, नया दीन आ गया। हमारा तो कोई ऐसा दावा नहीं है। नजीर साहब बात सुनो, ये ट्रू सीकर है, अंसर रजा है, नादर का वालिद है, जितने भी हैं, ठीक है, इन सब ने इस्लाम को छोड़कर जमात अहमदिया ज्वाइन किया है। मिर्जा साहब की किसी न किसी किताब से, उनके लिटरेचर से, किसी न खुतबे से मुतासर होकर उन्होंने किया। इस्लाम को छोड़ के गलत, नाउज बिल्लाह। आप जहालत वाला सवाल कर रहे हैं भाई, मुसलमानों को छोड़कर जमात अहमदिया में आए हैं ना। आप देखें, आपका सवाल ही गुमराही, हसद, जहालत वाला है, तो उसका जवाब आपको कैसे? भाई आपके अल्फाज सख्त हो जाते हैं तो मेरे अल्फाज बहुत सख्त हो जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इस्लाम से निकल कर बात सुने, आप इल्जाम लगा रहे हैं बोतान और किस कर रहे हैं इस्लाम से निकल कर। यार नजीर भाई, कोई जवाब नहीं नजीर भाई, जिसको ये नहीं समझ आ रही है, मैंने बयान सुने भाई, आप जब ये इल्जाम लगाएंगे ना अपने तालीम लाई हुई मौलवी की तालीम के मुताबिक जबान बोलेंगे, देखिए आप अब जब देखे आप मौलवी को भी चले जाएंगे यार। मौलवी, मैं मौलवी हूँ कोई? मैं कोई मौलवी हूँ? बात सुने, आपने अकलियत करार दी है तो मौलवी की बात में नहीं किया। इस्लाम तो इजाजत नहीं देता गैर मुस्लिम करार देना किसी को। आपने मौलवी की बात मानी और ईमान लाते हो, कुरान को छोड़ दिया आपने। आप हो मुसलमान, आप तो मौलवी इस्लाम रखते हो, आपको कुरान और हदीस से क्या ताल्लुक, अल्लाह और उसके रसूल से क्या ताल्लुक? उसकी तालीम आप फॉलो नहीं करते हैं। आपको जुर्रत कैसी हुई कि आप कहें कि इस्लाम छोड़ दिया हमने? क्यों? नजीर साहब, कैसे कह ये कैसे कह सकते हैं? नजीर साहब हो गई है ना बात आपकी, तसल्ली से आपने कर लिया ना बात। अब आपने म्यूट लगाना है। इखलाक का ये अच्छी बात आपने की, ये म्यूट लगाया। उस्मान भी अब आप करें बात, लेकिन वो अच्छे से बात करें, जाए जो समझाएं बात जो आप समझाना चाह रहे हैं। हाँ, मैं जो समझा चाहता हूँ। देखिए, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सर है कि जो भाई भी मुसलमान थे पहले, ठीक है, और उन्होंने कहा हकीकी इस्लाम की तरफ जाना है हमने, चलो ऐसे कर रहे थे ना।
اور احمدیت قبول کی ہے انہوں نے کہ حقیقی اسلام احمدیوں کے پاس ہے, ہم ان کے پاس جائیں گے. قرآن حدیث ان کے پاس پہلے بھی موجود تھی لیکن ان کو سمجھ نہیں تھی آ رہی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کیا, کسی نے لیکچر لاہور سنا, کسی نے کوئی کتاب پڑھی, کسی نے کوئی کتاب پڑھی, لیکن جب انہوں نے وہ کتاب پڑھی تو ان کو لگا کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے. پھر اس بندے سے متاثر ہو کر, اس کتاب سے, اس تحریر سے, اس خطاب سے متاثر ہو کر انہوں نے جماعت جوائن کی ہے. اب جو جماعت جوائن کی ہے ان بندوں پر تو وہ قرآن حدیث نہیں اپلائی ہوگا نا, کیونکہ وہ تو ان کے پاس پہلے بھی تھا. ان پر تو وہ چیز واضح ہوئی ہے جو مرزا صاحب نے بتائی ہے اور اس کو قبول کر کے وہ جماعت احمدیہ میں گئے ہیں. ہمارا کویشچن تو ان سے اس کتاب پر ہی اب, کیونکہ قرآن حدیث میں وہ متاثر نہیں ہوئے, اس کو تو نہیں انہوں نے پڑھا تھا پہلے, مرزا صاحب سے متاثر ہوئے ہیں, مرزا صاحب کی تحریر سے متاثر ہوئے ہیں. تو وہ مثلاً عثمان آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو راز کی باتیں مرزا صاحب کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں وہ ہمیں بتائی جائیں تاکہ شاید ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی غلط فہمی نہ ہو. ہمیں جو کنفیوژن ہے وہ مرزا صاحب کی تحریروں پر ہے. مرزا صاحب کی تحریریں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں لگتا ہے کہ یہ آگے عثمان بھائی آپ کا سوال آ گیا. ہاں سمجھ, ابھی آپ کو سمجھ آئی ہے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کتابیں پڑھ کر اسلام احمدیت قبول کیا ہے. اب آپ بھی کتابیں پڑھیں اور اگر قبول کرنا ہے تو قبول کریں, ہم سے سوال نہ کریں, احمدیوں سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے بھی قبول کیا انہوں نے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں اور قبول کر لیا. اب آپ کے بھی لیے, سب کے لیے یہی راستہ ہے کہ کتابیں پڑھو اور اگر وہ حقیقت نظر آتی ہے تو قبول کرو ورنہ چھوڑ دو. احمدیوں سے کوشچن نہ کرو کہ آپ ہمیں سمجھاؤ, ہم کیوں, باقی جو اگر پڑھ کر سمجھ رہے ہیں تو آپ کی سمجھ کو کیا ہو گیا بھائی, آپ ہی پڑھو. نہیں نذیر بھائی ہم نے تو الٹی پلٹی کر کے پڑھ لی ہے لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے, بات سمجھ نہیں آئی. نذیر بھائی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا کتاب کا, وہ کس سے پوچھے گا جا کے؟ ان کو کیسے سمجھ آئی ہے, ان کو کیسے سمجھ آئی ہے, تو ان سے یہی تو پوچھے گا پوچھ نا جن کو سمجھ آ گئی ہے. وہ پوائنٹ ہمیں بتا دیں. میں کہہ رہا مرزا صاحب کی کتابیں پڑھو, اسی میں سوال ہوتا ہے, اسی میں جواب تسلی بخش جواب ہوتا ہے, کسی کو زیادہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وہ ایسا کمال کا سلطان القلم وجود ہے, پاک وجود خدا نے عطا کیا ہے کہ جب اس کی قلم بولتی ہے تو وہ دلوں میں اتر جاتی ہے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس پر جو سنو بھائی پیارے مسلمانوں, ایک کتاب پڑھو. کر لینے دیں انہیں بات کر لینے دیں, زاہد بھائی کر لینے دیں بات, انہوں نے میوٹ نہیں کرنا, قسم سے انہوں نے میوٹ نہیں کرنا, انہوں نے بات پوری کرنی ہے, انہیں کر لینے دیں. مجھے بات پوری کرنے دو, میں خود ہی میوٹ کر لوں گا. بات سن لیں, میں آپ کو سمجھ گیا ہوں. نذیر صاحب ایک منٹ دیں, میں کہہ رہا ہوں کہ سن تو لیں, میں ہوسٹ ہوں, میری بات سن لیں. میں یہی اپنے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو تسلی سے بات کر لینے دیں. آپ جتنا مرضی روکیں گے وہ رکیں گے نہیں, تو انہیں بات مکمل کرنے دیں, پھر آپ کرنے بات. جی نذیر صاحب بسم اللہ. میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں وہ اجاز ہے کہ جو شخص بھی مرزا صاحب کی کوئی کتاب ایک پڑھ لے گا, میں واضح طور پر حلفاً خود ایک تجربہ کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہ کتاب پڑھے گا وہ سلطان القلم وجود پاک وجود کی تحریر ایسی ہے کہ وہ دلوں کو دھوتی جاتی ہے. جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ اپنے دل کی صفائی کروا لے گا, تزکیہ نفس کر لے گا, کیونکہ قرآن نے یہ خبر دی تھی کہ آخرین کا بھی تزکیہ نفس ہوگا. ہاں ان کا جو پاک وجود ہے, پلیدوں کا بالکل نہیں ہوگا. ہاں اپنے آپ کے وجود کو صاف رکھو, پاک رکھو, اللہ کی طرف جھکو, پھر دیکھو کہ وہ تمہارے پر کیسی جو ہے نا یہ قرآن کی آیتیں تمہارے دلوں پر بھی اتریں گی اور تمہارے پر اثر کریں گی. قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ آپ کے دل میں اتر نہ اور جو اس کا غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام آپ کو سمجھا رہا ہے, جو قلم چلا رہا ہے, یہ سیف چشتیائی کی قلم نہیں ہے, یہ آسمان کی قلم ہے, یہ زمین والے کی قلم نہیں ہے. یہ تو ایسے بول رہا ہے جیسے پل پہ اوپر منجن بیچنے والے ہوتے ہیں, منجن بیچ رہے, منجن. بولنے دیں ان کو. دھونا ہے اپنے دلوں کو, تو وہ تو سارا دن بولے گا. اس طریقے سے بول لینے دیں طارق صاحب, بول لینے دیں. نہیں بول سکتے تھے آپ پورا دن, آپ بول لینے دیں. جی نذیر صاحب بولے. ہاں جی بولو, جی بولو. کہہ رہا ہوں میرے پیارے بھائی, کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آؤ مرزا صاحب کی کتابیں خود پڑھو اور اپنے نفس کا تزکیہ کرو. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو سچے دل سے آتا ہے اور مرزا صاحب کی کتاب پڑھتا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کر کے نہ گیا ہو. اس در پر جو آئے گا
वो अपना तज़किया नफ्स करके जाएगा। एक शर्त है कि हाँ, इखलास से पूरी किताब अगर है, किताब पढ़ लो, फिर तो तुम्हारा हो गया तज़किया इसका नफ्स, मतलब है तुम्हारा तारक भाई तज़किया नफ्स हो आपने गया। तज़किया नफ्स से एक मिनट किताब देना, नहीं पढ़ी। एक मिनट देना मुझे, पहले एक भाई आए हैं, मुझे पूछ लेने दे उनसे वो कौन है, फिर करते हैं बात में, आगे चलते हैं जी। पहले तो जी तारक चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम, अहमद अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरे ना एक भाई है ना, मैंने नहीं पता है कौन है, मैं पहले पूछ लवा जी। आईडी कोड भाई अस्सलाम वालेकुम, कोई बात करनी है आपने? आपको मैं जानता नहीं हूँ, कौन है आप, थोड़ा तारुफ करवाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बस आप लोगों की अभी आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग अप बट आई जस्ट केम अक्रॉस योर ब्रॉड, मैंने इसलिए ज्वाइन किया आप लोगों की। मुझे जो डिस्कशन थी, डिबेट थी, थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो इसमें जो नज़ीर साहब बोल रहे हैं काफ़ी देर से, आपका क्या तारुफ है भाई? मेरा तारुफ यही है जो नज़ीर भाई का तारुफ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमात अहमदिया से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मैंने कहा चलें भाइयों को ज्वाइन करते हैं। आपकी मेहरबानी, आपने बहुत टाइम दिया। जब तक मैं आई जस्ट ज्वाइन में बी मिनट अगो, 1 मिनट से शायद 1.5 मिनट हुआ होगा। तो आपने मिर्जा साहब की किताबें पढ़ी हुई हैं? एक मिनट दीजिएगा, आमिर भाई आए हैं, आमिर भाई आए हैं, मेरे से सलाम ले लेने दें जी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। आईडी कोड भाई करें बात आप। आपको पहले मैंने कहीं देखा नहीं है, आप पहले ये नए नए आए हैं टिकटॉक पे कि पहले से मौजूद हैं आप? हाँ, आप यही समझ लें मैं नया आया हूँ। समझ लें। अच्छा चले, करें बात आप, करें बात। मैं नया ही हूँ एक्चुअली। फैमिली और करें बात आप। उनके साथ इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं टाइम इतना दूँ, लेकिन बस कभी देख लेता हूँ। ये आमिर भाई, ये आईडी कोड की एक आईडी है, ये जमात अहमदिया से ताल्लुक रखते हैं और ये कह रहे हैं कि मैं टिकटॉक पर नया आया हूँ। तो नज़ीर साहब की ये बात सुन के ना फिर ऊपर आए हैं, तो मैंने पिक किया है ना। तो तारिक चौहान साहब बैठे हैं, आप भी बैठे हैं जी। नहीं, मैं तो आप नज़ीर भाई को कंटिन्यू करने दें, मैं उनकी बात सुन रहा था। तो आई जस्ट जॉइन, आई थॉट हेल्दी डिबेट, दैट्स इट। आईडी कोड साहब, कोड भाई से ये पूछ लें कि ये पैदाइशी अहमदी हैं या कि मुतासर हुए हैं मिर्जा साहब की किताबें पढ़ के? यार मेरा रिप्लाई आपको बड़ा डिफरेंट मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि पैदाइशी या मुतासिर ये तो दोनों डिपेंड करता है। और मैं मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, लेकिन आई एम अब्रॉड। लेकिन जिस टाइम पे मैं पाकिस्तान हुआ करता था, उस टाइम पे पाकिस्तान में इतनी नफरतें थी नहीं, ठीक है। तो अगर आपने सवाल किया तो थोड़ा टाइम दें मुझे बोलने का, जिसने मुझे रिसर्च में ज़्यादा मुब्तला किया। तो वो ये था कि मेरा बचपन, आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो 80s and 70s and 90s सेंचुरी, आई मीन जो हाँ। तो उस ज़माने में इतना पाकिस्तान में नफ़रतें नहीं होती थी, ना हलाकतें, ना फतवे होते थे। जो भी इंसान रहता था, चाहे वो किसी फ़िक्र से भी हो, किसी की मज़हब से हो, दायरा इस्लाम से कोई ऐसा नहीं, लाइसेंस टू टेक आउट नहीं था किसी के पास। लेकिन किस साल की बात कर रहे हैं? किस साल की बात कर रहे हैं? मैं 80s की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 80s यानी 85 वगैरह की? नहीं, अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ चलें, आप उसको 85 भी ले लें, आप फिर आप जाएंगे ज़ियाउल हक। तो आई मीन आई डोंट वांट टू गो बैक टू दैट डिबेट। मैं बात कर रहा हूँ यंग नस्लों की, जिसमें मैं उस टाइम पे बच्चा था, एक टाइम पे, ठीक है। आपकी जो सने पैदाइश है, यानी कितनी उम्र थी आपकी 80s में? यार आप वो छोड़ देना, मेरी उम्र क्या थी, मैं कहाँ से था, मैं कराची में था। लेकिन हाँ 80s में मैं कोई आपकी शनाख्त वो लोकेट नहीं करना चाहता। सर 80s में मैं 80s में मैं बच्चा ही था।
बच्चा भी मतलब इसलिए मैं करना चाहता हूँ ना वजाहत कि उस वक्त तो अरूज था नफरत का, जब 84 में ये ज़िया ऑर्डिनेंस आया है, ये ऐसे ही आ गया आपके ख्याल में? 84 में नहीं आया ना सर, बेसिकली शुरुआत तो 73-74 से हुई थी, राइट? 74 में तो कानून पास हुआ था ना, हाँ जी, जो आइन में तरमीम हुई थी वो 74 में हुई थी, लेकिन 84 में जो ज़िया ऑर्डिनेंस आया है, बिल्कुल वो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। और मैं बात कर रहा हूँ सन 89-85 के बीच की। आमिर नदीर साहब हमेशा सही पकड़ते उसका ये सीन था कि मेरा पूरा बचपन जमाते, आई मीन आपके नेमतुल्लाह साहब आपको याद होंगे कराची में, राइट? जमाते इस्लामी वाले, वो हम उनके बच्चों के साथ हमारा बचपन गुजरा है, उन्हीं के कारी हमें पढ़ा रहे हैं। हम अपने पूरे मोहल्ले का एक वाकया बता रहा हूँ, आई विल नॉट नेम दोज पीपल, वो बहुत बड़े लोग हैं, मतलब कि वो हम भी छोटे नहीं हैं, कि वो रेपुटेबल अच्छे लोग। लेकिन उस ज़माने में जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये था कि कुछ उसी मोहल्ले में कुछ घर खाली हुए थे और अफगान महाजरीन जो पाकिस्तान में आए थे, हमारे भाई हैं, ठीक है, उनमें से कुछ लोग आके बसे। और उस पूरे सिलसिले में मैं क्या, मेरे भाई बहन, पूरा मोहल्ला, एक ही हमारे स्कूल के मौलवी बशीर होते थे, वो आ रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, नाजरा पढ़ा रहे हैं, सब साथ पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है क्या है डिफरेंट। तो भाई हमारे घर में कोई मेहमान आता है, इंटीरियर सेंस है। अब ये वाकया गौर करिए, मैं सच्चा वाकया बता रहा हूँ। अब वो आते हैं और अब मैं आपको फिर मैं छोटा सी बात बताता हूँ, मिलिट्री बैकग्राउंड है, ठीक है? तो वहाँ से पता लगता है कि शाह साहब के घर पे ये लोग आए हैं, ये तो हमने मीरपुर पे उस जगह पे मरकोट पे ये लोग तो कादियानी हैं। ना पूछा, ना किया, ना सवाल, ना जवाब, बच्चे मोहल्ले के बच्चे, और मैं उन मोहल्लों के बच्चों पे दावा करता हूँ उनमें से किसी को, हम लोग साथ पढ़े हैं, बहन भाई आपस में खेल रहे हैं, नाजरा पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, मिलाद पूरा मोहल्ला है। अचानक से एक हमारी लड़का आता है, गिरबान पकड़ता है, कलमा सुना, मैंने सुना दिया भाई। उसके बाद बात खत्म हो गई, बड़े बुजुर्ग शामिल हो गए। फिर तरावी पढ़ रहा होता हूँ मैं उसी मोहल्ले की मस्जिद में, सुनिएगा बड़ी गौर की बात है, मुझे पड़ती है टट्टो पे लात, मेरी 9 साल की उम्र है, और मुझे मस्जिद से बाहर फेंका जाता है, ठीक है? कितनी उम्र थी? 9 साल आपकी? 9 साल, ठीक है? ये किस साल की बात है? 84 के बाद की बात है? आप एक काम, मेरे डेट ऑफ बर्थ ले लें, आप फिर एक काम करें, मैं आपको बोल रहा हूँ 80s से 90s के बीच की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? नहीं, ये नहीं समझ आ रही कि आप वो नमाज उनके साथ कैसे पढ़ ली आपने? मिर्जा साहब ने तो मना किया हुआ है, किसी काफिर मुकद्दब के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। देखें मिर्जा साहब के, आप जब आप बात करते हैं ना, अभी आपने चलो मेरी बात को इंटरप्ट किया, उस वक्त इतनी नफरतें नहीं फैली हुई थी। मैं नफरत की बात नहीं कर रहा, लोगों को नॉलेज नहीं था इस वजह से, क्योंकि आपको भी पता नहीं था कि गैर अहमदी के पीछे नमाज नहीं पढ़नी, इसलिए आप चले गए ना। आपके फौतल कल्बी, चले ठीक है, जो लात पड़ी है, आप जो कह रहे हैं मैं सुने तो सही ना, जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया ना, उसकी बजाय ये कहें कि आपके फौतल कल्बी पे वो लात मारी किसी ने, और उसकी वजह ये थी कि आपको बताया गया कि भाई आप गैर अहमदियों के पीछे क्यों नमाज पढ़े। अब करेंगे। अच्छा, तो मतलब ये है कि अगर मेरी मस्जिद में, जमात अहमदिया की मस्जिद में कोई बंदा आएगा, मैं उसके फौतुल कल्बी या टट्टों पे लात मार के बोलूंगा बाहर निकल। हो फिर ये आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे ना। नहीं तो आप अपने देखिए, वही वाली बात है, सोफिस्टिकेटेड, मैं आपको बोलूँ आई एम गोना स्लैप यू और आई एम गोना चमाट यू। आप बात तो मेरी खत्म होने थे, आपने मुझसे सवाल किया तो मेरी पूरी बात सुने। अब आपने बोला कोशिश करें ना, पहली बात आपसे पता है आपको क्या पूछा गया? पहली बात ये थी कि आपने मुझसे सवाल पूछे, आपने तो सवाल ही नहीं किया, पता नहीं कहाँ से बीच में आए, किसी और भाई ने सवाल तो इतना सा किया था, आप भूल गए सवाल को। सवाल ये मैं बिल्कुल, मुझे सवाल याद है। अब आप मुझे ये बताएं, आसिफ चौधरी साहब ने आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछा था कि आप पैदाइशी अहमदी हैं या कन्वर्टेड है, इतनी सी बात थी।
आप वो फौतल कल्बी, वो इस्लामी जमात, नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। आप अपने गार्ड रेल मत खड़े करें प्लीज, मेरी बात आप सुनें। कराची से घूम के इतनी सी बात का जवाब देने के लिए आप मेरी देखें, कितना लंबा अभी सफर आप क्या करवाएंगे कर भाई? रहे हैं? अभी आप ना बात को कर रहे हैं गुमराह। मैं बात बोल रहा हूँ कि भाई आप छोटी सी बात बता दें भाई, आप पैदाइशी अहमदी हैं या कन्वर्टेड हो हैं? या देवबंदी, जो भी है, अपने इखलाक से लोगों को अंदर लेकर आता है, ठीक है? हाँ, वो तो मुझे अगले ये की बताएं। जिम्मेदारी इखलाक से लाता है कि तलवार से लाता है, वो खसमा खाए। आप सीधा जवाब दे दें उनको, आसिफ चौधरी साहब को, भाई मैं पैदाइशी अहमदी हूँ, या कह दें भाई मैं कन्वर्टेड हूँ। इसके लिए कराची, हैदराबाद, सक्खर कहाँ से आप घूम रहे हैं भाई? यार आपको लाइसेंस टू क्वेश्चन मतलब कि आप मुझे बताएं, आपकी 1980 में उम्र क्या थी, बताएंगे मुझे आप? मुझे कोई सवाल कर लें, छोटा सा सवाल मुझे कर लें, मैं छोटा सा छोटा जवाब दे बताता हूँ ना दूंगा। आपको। सर मेरी बात सुने, मेरी अपने खानदान में आपकी ये आदत क्यों है कि नहीं सर, छोटे मेरे से अपने सवाल खानदान के में जवाब एमपी भी हैं, शिया भी आप हैं, पूरे कराची बरेलवी की, भी हैं, सक्खर की, सुन्नी भी हैं, हैदराबाद की देवबंदी सैर भी करवाना हैं। शुरू कर देते हैं बंदे को। नहीं हर मिर्जाई समझता है जलसा सालाना की तकरीर करनी है। आप एक जलसा सवाल सालाना की कर रहे तकरीर हैं। शुरू कर देते हैं, छोटी बात करें। अच्छा, बंदे बैठे हुए हैं यहाँ आप पर लोगों ने 50, मतलब ये बात तो उन्होंने सुननी बात ही है। सुननी है, आपकी किसी नतीजे पर पहुंचना है, आपने तकरीर शुरू कर दी भाई। चलें ठीक है, मैं तकरीर नहीं करता, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जिस मजहब को आप यहाँ बैठ के ब्लेम कर रहे हैं कि वो जमात अहमदिया फलाना है, तो मुझे अगर आप गैर अहमदी भाई हैं तो आपने ही तलकीन की है कि मुझे वॉलेटाइल और तालिबान मजहब में नहीं जाना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहमदी के ब्लॉग करता हूँ, विच बिलीव इन लव फॉर ऑल एंड हेट फॉर नन। ठीक है, बस खत्म लव फॉर ऑल, खत्म हो गया बात सर। अब उसके बाद मुझे सवाल मत करिए। हाँ ठीक है, सवाल आपसे नहीं करने लगा, मैं लोगों को बताने अपनी लगा तमीज ही हूं। मत बांधिए अब आप, क्योंकि अच्छा, मैं यानी जो आप बात करें मेरे मुंह पर टेप लगा दें, आपने बात कर ली है, लेके आई जो बात आपने कर ली मैंने है ना, इसलिए ज्वाइन किया मेरी था, बात मैंने नजीर भाई की बात सुनी थी, तो मैंने कहा चले कोई यहाँ पे भाई जो बात आपने कर ली है, इसके बाद आप हाइड्रोजन बम क्यों नहीं चला देते कि आप दूसरा कोई ना बोले? नहीं, पाकिस्तानी छोड़ियो, पाकिस्तानी मुल्ला छोड़ियो भाई, मैं हाइड्रोजन बम चलाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये फतवे तो आपके पास है, और कोई गाली, वाले लोग हैं। मुल्ला मौलवी, आप तो लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन का बता रहे थे, अभी मुल्ला शुरू हो गए आप। हाँ मुल्ला तो आपकी, मैं आप लोगों की मिसालें दे रहा हूँ ना। पाकिस्तान, अगर आप जितनी नफरत आप लोगों के दिलों में मुसलमानों की और अहले इस्लाम की पाई जाती है, इतनी तो किसी में पाई नहीं जाती, और ऊपर से झूठ बोल के कहते हो लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन। अच्छा, जहर तो कत्ल के आपके अंदर है, फतवे छिपकली से और ज्यादा है। असेंबली और पार्लियामेंट में, और आपके छिपकली से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ज्यादा। लिखा है? ओ भाई, आपको फतवा दिया गया, हल्का हाथ रखा गया। मेरा भाई, मुर्ताद की सजा कत्ल है इस्लाम में। अच्छा चले, आप इस आपके बात को मिर्जा साहब मानते ने हैं? डॉक्टर चलें, अब्दुल आप इस हकीम बात को पटियालवी को मानते हैं ना? लिखा हुआ है। चले आप मानते हैं ना? आपके मिर्जा साहब ने, सुन तो लो, ओ भाई सुन तो लो, डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को आपके मिर्जा साहब ने खत में लिखा हुआ है कि इस्लाम में मुर्ताद की सजा कत्ल है। आप पर अगर फतवा दिया गया या अगर आपको आईनी तौर पर काफिर करार दिया गया, हल्का हाथ रखा गया, आपको तो कुछ कहा ही नहीं गया। आप गालियां दे रहे हैं, मुल्ला मुल्ला मुल्ला, मौलवी मौलवी, तालिबान। यार मैं तो एक भी जितनी गाली नहीं नफरत दी। आपके मतलब दिल में मैं तो है, एक भी गाली, जितना आपको तो जहर आप शुक्रगुजार होना है ना, चाहिए। मेरी बात सुने, शुक्रगुजार होना चाहिए आप आपको। जितना जहर- मुल्ला वर्ड को गाली समझते हैं भाई, जितना जहर आपका मसला है, आप मिर्जाइयों मेरा के मसला नहीं है। अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपके जहर अंदर मेरा जितना मसला भरा नहीं हुआ है, है इतना- सर। इतना आप छिपकली के जहरी अंदर भी मरीज नहीं हो है। गए हैं। आप छिपकली में भी वर्ड को तलाश गाली करो समझ तो रहे हैं, शायद तो आप खून से जहरी बूंद मरीज दिखाई हैं। दे जे। आप जहरी आपके अंदर मरीज जितना बन गए जहर हैं। भरा हुआ है ना, मैंने तो आपको नजीर साहब, इतना अखलाक छिपकली से के बात अंदर भी कर नहीं रहा है। आमिर नजीर साहब, ये देखो मोहब्बत, अब वो मोहब्बत किधर गई आपकी, जो अब दूसरे को ज़हनी भाई मरीज मैं करना तो शुरू हो गए मैं हो। आप बोल रहे हैं अब कि वो मैं गाली मोहब्बत दे रहा हूँ, मैं किधर तो गाली दी नहीं। मोहब्बत मैं का तो मुल्ला प्रोग्राम बोल तो रहा बढ़ हूँ, गया मौलवी ना। बोल रहा हूँ। लव फॉर ऑल, हाँ मुल्ला मुल्ला मुल्ला, वो लव किधर तो गई मुल्ला आपकी? गाली है अभी क्या? जो कह रहे थे लव फॉर ऑल, मुल्ला गाली मुल्ला है क्या के लिए भाई? लव नहीं है आपके अरे दिल में। मेरे भाई, मुल्ला गाली हाँ। है। लव जो है वो मुल्ला के लिए नहीं है, आपकी लव सिर्फ और सिर्फ बरतानिया के लिए, गैर मुसलमानों के लिए, अपने पेट के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए है। आपकी लव मुसलमान और अहले इस्लाम के लिए नहीं है, चंदा इनके हिंद तो के लिए है, नफरत और चंदा इतना हिंद के। जहर है, नहीं इतना ऐसी- जहर है ऐसी- आपके अंदर ऐसी- कि ऐसी छिपकली में बात भी इतना नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई हुई है, मैं आपकी गलतफहमियां दूर कर दूंगा अगर हम तसल्ली से बात करें। आप आपसे पहले बड़े आए यहाँ पर गलतफहमियां दूर करने तो वाले। इसका मतलब है कि आप पहले नहीं हैं। बना हुआ, आप इसी 22 सोच से बात कर रहे हैं। आप पहला आदमी नहीं है जो ये समझ कर आए हैं कि आप गलतफहमी दूर कर देंगे। आप क्या मैं तो गलतफहमी दूर सोच के आया करेंगे? ही नहीं था भाई, मैं तो नजीर भाई को देख के आया था, मैंने पहले ही बोला। गारंटी मेरी सुन लें, मेरी बात सुन लें, मेरा दावा सुन लें। जी आमिर भाई, अगर इसको झूठा साबित कर दें, मैं यहाँ सबके सामने आपसे माफी मांगूंगा। आपको झूठा साबित अपने कर दूं, लिटरेचर का भी नॉलेज
आपको तो अपने लिटरेचर का भी नॉलेज नहीं है, मैं दावे से कहता हूँ। अगर आपको अपने लिटरेचर के बारे में पता हो और अपने नजरियात और आपको मेरे बारे में तो पता लग गया, ठीक है, मेरा क्या है, तो आप मुझे कभी बताएं, भी ये आप कौन बात हैं? आप ना देवबंदी हैं, बरेलवी कि हैं, आप किसी का अपना तो तारुफ कराएं ना, आप अपना तारुफ कराएं नहीं। फिरका बताओ, फिरका आप बताएं ना, मेरा आप फिरका, हाँ बताएं ना सर। मेरा फिरका पूछने से पहले ओ भाई मैं मुसलमान हूँ और आपको नहीं सर, ऐसी वैसे नहीं है, मैं मुसलमान हूँ। आप जो बात बोलेंगे ना, जो मेरा फिरका है, मैं मुसलमान हूँ, मेरी सुने ना बात। भाई आपने जो सवाल किया, मैं आपके बुजुर्गों की जवाब मैं आपके बुजुर्गों की तहरीरें आपके सामने लेकर आऊंगा ना, मुझे अपनी वो मुझे पता है, वो मुझे पता है। सर आप अपने बुजुर्गों की तहरीरों का जवाब नहीं दे पाओगे, मैं तो अपने बुजुर्गों की तहरीरों का जवाब दे लूंगा, क्योंकि मेरे लिए वो हुज्जत नहीं है जिन बुजुर्गों की आप तहरीरें पेश करना चाहते हो। मतलब ये है कि मेरा मत पूछो, अपना बताया जाओ। हाँ ओ भाई सुन तो लो यार, एक काम करें, मैं आपको ना नीलाम घर पे तारिक नज़ीर साहब होते थे, मैं मुसलमान, उसकी ट्रॉफी आपको भेज देता आपको हूँ। दायरा इस्लाम से खारिज समझता हूँ। आप समझे, कोड साहब आप दूसरे की भी सुन लेना, मुसलमान हूँ भाई, आप लाइसेंस दूसरे की भी सुन ले जरा, चुप करके। सच बोले आप भी। नहीं, आप लाइसेंस टू इस्लाम है, आपको अल्लाह ने इस्लाम का लाइसेंस दिया है भाई। आपके पास, आपके खलीफा के पास लाइसेंस था जिसने कहा था कि जो मसीह मौद को नहीं मानता वो काफिर, बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम भाई, उसके पास कहाँ से आया था लाइसेंस? मेरी बात सुने, उसे किसने लाइसेंस दिया था? भाई मसले मऊद इमाम मेहदी के बाद इस वक्त मसले मऊद नहीं भाई, मुस्लिम मऊद इस वक्त दुनिया में इस वक्त जो वाहिद इंसान है ना, अल्लाह से हम कलाम होता है, दी गई हैं, वो खलीफा खामिस है, उससे पहले खलीफा राबे थे। ओ भाई सुन लो, ओ सुन लो। नहीं, आप ऐसी बातें आपको मैंने कहा कि सिर्फ आप देखें, आप एक काम करें, मेरे सवाल का जवाब दे दें, जाके ना अपने मुल्लाओं से ताबीज़ लगवाएं बस। आप अपने 2 नंबर खलीफा के पास ये लाइसेंस कहाँ से आया? नहीं सर, नहीं, नो प्रॉब्लम। आप एक काम करें, न्यू टाउन की मस्जिद में या मेरे सवाल का जवाब अंदर जाके ना सिर्फ आप ताबीज़ मैंने कहा आपको सुन तो ले, यही कर सकते हैं, या फिर एक काम करें, तवीज़ गंडा मिर्जा साहब या के सजदे करें, या सजदे करें मकबरों पे, आपका यही काम है। तवीज़ से हकीम नूरुद्दीन की बीवी हमला हुई थी, पता है आपको? अरे सर, हकीम नूरुद्दीन की बीवी आपके मसीह मऊद के तवीज़ से हमला हुई थी। तवीज़ गंडा जितना आप में पाई, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं है अपने लिटरेचर का, आप अपने गंद को नहीं जानते। आपको मौलवियों की 2-4 पर्चियां पकड़ाई गई हैं। पता है आपको कि आपके मसीह मऊद के तवीज़ से वो जो खलीफा नूरुद्दीन था उसकी बीवी हमला हुई थी, पता है आपको? सर मुझे अब अपना तारुफ कराएं। अब आपने बात कर ली, मैं तारुफ करवाता हूँ, किसी सवाल का जवाब दोगे? आपसे सवाल हल्का पूछा। नहीं, मैं आपको आपकी जबान में जवाब दूंगा, आपको मेरी जबान में जवाब तकरीर करना शुरू हो गए तो मेरा हक बनता है। 2 जवाब। तुम बताओ, तुम बरेलवी हो तो मैं तुम्हारी जवाब दूंगा, तुम देवबंदी हो तो तुम्हें तुम्हारी जवाब, आप जो भी हो मैं आपको अपनी जबान में जवाब दूंगा सर। तो भाई मेरी जुबान में जवाब देने वाला अभी कोई बच्चा जना नहीं है। 1 मिनट आमिर भाई दीजिएगा, आमिर भाई 1 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा सा बिजी था। जैन ने वो बच्चा नहीं पैदा किया जो मेरा जवाब दे सके। एक सवाल मैंने पूछा कि आपके मसीह मऊद के तवीज़ से खलीफा नूरुद्दीन की बीवी हमला हुई कि नहीं हुई? खलीफा तो आप हो गए, मेरे सवाल का जवाब दोगे? कोई भी बच्चा दुनिया में तो करें, चेक तो करें तवीज़ से जवाब दे। हाँ, और तवीज़ से बीवी हमला हो जाती है सर आपके यहाँ? मसीह मऊद के तवीज़ से खलीफा नूरुद्दीन की बीवी आमिर भाई आपको सैल्यूट है भाई, आपका कोई दुनिया में कोई जवाब नहीं दे सकता, मतलब वक्त के खलीफा तो आप हो गए। अभी से सल्यूट करना शुरू हो गए हो, अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी तो अरे घबरा गए हो यार। अपनी प्रोफाइल तो बताओ मेरे भाई। एक सवाल पूछा कि भाई आपके 2 नंबर खलीफा को लाइसेंस किसने दिया था कि वो मुझे काफिर करार देता? मेरी मुझे सवाल का जवाब करार देता। मेरी सवाल का जवाब मैंने कहा कि बातें की, मैं वो हूँ, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। अरे भाई मैं वो हूँ, कैसे बिलोंग करते हैं? सवाल आपका आ गया। अच्छा सुनो, देखो मुझे ना चुप कर रहा है नज़ीर साहब, एक सेकंड आमिर भाई, मुझे ना आपकी आवाज से फील हो रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। प्लीज नज़ीर एक खामोश हो जा, ऐसा ना हो कि आपको हॉस्पिटल खामोश हो जा। 1 मिनट 2 मिनट नहीं होने चाहिए, 6-7 मिनट चाहिए जवाब देने के लिए। 6-7 भाई आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, दवाई शवाई ले ले। मुझे आपके आवाज से लग रहा है आपको 60-65 साल के बुढ़े। 2 सवाल पूछे, दोनों के सामने लाश बन के पड़ गए हो। बात कहते हो मैं मुंह बंद कर दूंगा, मैं दलाइल दूंगा, ऐसे जवाब दूंगा कि मैं छक्के चढ़ा दूंगा। अच्छा, मुझे लग रहा है आप पता क्या कर रहे हो,
सुन तो लो। आप अनिल कपूर बने रहे हो। अनिल कपूर पता है करता था, सवाल तो सुन लो, सामने आईना रखता था, शीशे के सामने एक्टिंग करता था। सवाल तो सुन लो, खुद ही सवाल खुद ही साहब, सवाल तो सुन लो, मरने वो क्यों खुद लगे ही जज खुद ही कलाम। आप तो आपने वोट कर रहे मुझसे हो। कहा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपने कहा कि भाई मुझे किसने मैंने लाइसेंस ये दिया, कहा, आपको आपको गैर सारे मेरे कहा तो समझ आया। मैंने ये बोला आप अपना बताओ कौन हो, देवबंदी हो? हाँ मैं बता, अगर मैं बताता हूँ तो सुनते ही नहीं ना। हाँ तो पहले वो मैं बताओ। बताता हूँ मैं कौन हूँ। नहीं पहले वो बताओ हो सुनो मैं कौन हूँ। मेरा तो पता है मैं बताने लगा हूँ, मैं बताने लगा हूँ। अगर चुप करके सुनोगे तो सुनो, एक लाइन का जवाब है। आमिर भाई 1 मिनट दीजिएगा। एक लाइन का जवाब दूंगा, एक ही लाइन का जवाब दूंगा। अगर ज्यादा लाइनों का दूंगा मुझे पता है कि आपका कलेजा फट जाएगा। एक लाइन का जवाब दूंगा। आमिर भाई 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ डेकोरम इसको ठीक कर दूं। ये अपना आईडी कोड साहब एक बात सुने बड़ी तसल्ली के साथ। जब आप बात करेंगे ना तो आमिर भाई बिल्कुल नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही आमिर भाई बोलेंगे तो आपने प्लीज सुननी है बात। यहाँ ना वो नहीं करना जो आप कर रहे हैं अभी। तो दोनों एक दूसरे की बात सुने ताकि तसल्ली से नीचे लोग भी सुन सकें। दोबारा अब आपने माइक नहीं खोलना जितनी देर आमिर भाई बोल रहे हैं, और आमिर भाई आपकी बारी में नहीं बोलेंगे। आमिर भाई करें आप बात। पहली बात तो मैं 1 मिनट का टाइम, एक सवाल 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करूंगा। 1 मिनट से ज्यादा ये बताएं पहले कौन है, अदरवाइज आप भी 1 मिनट कर लेना। मुझे बताएं कौन। हाँ बताता हूँ, म्यूट कर लेना, म्यूट कर ले, वो देने लगे हैं। अब क्या मैं जवाब देने लगा हूं मैं कौन हूं। मैंने कहा नहीं, आप अंदाजा रखें, अगर 60 सेकंड से ऊपर मेरी बात चलेगी मेरे गले में कपड़ा डाल लेना। मैं कोई लंबी बात करता ही नहीं। इसने मुझसे पूछा है कि बताओ तुम कौन हो। सर मैं वो सेकंड नहीं लगते हैं बोलने में। जिसने- देवबंदी, बरेलवी, शिया, जो भी फिक्का, मैं बोल रहा हूँ फिक्का बताओ। और चुप करके सुन सकते हो कि नहीं? और चुप करके सुन सकते हो कि नहीं? नहीं मैं नहीं सुनूंगा सर, क्योंकि आपको मेरा पता है, मुझे आपका नहीं पता। तो अगर सवाल किया है तो जवाब सुनने आपने की हिम्मत सवाल है कि नहीं किया है? भाई, मैं जब इस लाइफ पे आया मुझसे सवाल किया, मैंने ओपन बोला मैं जमात अहमदिया से हूँ। आप मुझे बोलो मैं फलानी क्या जमात से जवाब हूँ। दिया? खत्म हुई बात। मैंने आधे घंटे तमीज की सुनने के लिए हैदराबाद लेके चले गए लोगों को। मैं यहाँ पे तमीज सुनने के लिए नहीं बैठा सर। पहले आप बताओ आप कौन हो, फिर मैं आपसे बात। ओ भाई तवील कौन सा? हाँ बताने लगा हूँ ना। नहीं बताने लगा, बताने के लिए भाई एक लफ्ज है, जबान मुंह में डालोगे, और जबान मुंह में डालोगे, कानों से सुनोगे तो मैं बताऊंगा ना। कान होते हैं सुनने के लिए, ये जो जुबान तुम्हारी चल रही है सुनने के लिए नहीं होती, अल्लाह बोलने पाक के लिए होती है। आपको भी यही तौफीक दे दे। आप मुझे तो नहीं लगा आपको हाँ तो मैं चुप करके सुन लेता हूँ, मैं चुप करके सुनता हूँ। अगर तुम सुन सकते हो तो सुनो। तुमने सवाल मुझे ये किया, जवाब मैंने दो, देना है। तुम हो कौन? और भाई बताने लगा हूँ ना। भाई एक चुप तो करो। तमीज मत बांधो जब ना, तुमने बताओ मैं बरेलवी हूँ, बस खत्म हो गई बात। मैं बताने लगा हूँ, मुझे 60 सेकंड चाहिए, 1 मिनट चाहिए, घंटा किसी को मिनट नहीं चाहिए होता, बताना पड़ता भाई ये हूँ मैं। तो फिर मेरी तरफ से ऐसा करो, मेरी तरफ से तुम जवाब दे दो। चलो मैं कौन हूँ तुम बता दो, मैं कौन हूँ बता दो लोगों को, मैं कौन हूँ खुद तुम बता हो दो। चूज द बेस्ट आंसर हैं? तो स्कूलों में आता ना चूज द बेस्ट आंसर, तुम वो हो। हाँ चलो ठीक है, तो फिर पूछने की जरूरत क्यों पेश आई है तुम्हें? तो फिर आप एक काम करो ना, जो डिबेट तुम्हें तुम्हारी डिबेट में बैठे क्यों? जो तुम्हें सुनो ना, और भाई सुनो ना, जो तुम्हें तुम्हारे इन बनौटी खलीफों ने तालीम दी है उसके मुताबिक तुम जो मुझे समझते हो समझ लो। फिर सवाल क्यों किया मुझसे? अच्छा कि मैं कौन हूं? इसका मतलब है कि तुम्हें पता है कि मेरा खलीफा मैं किस जमात से हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें किस बात पे काउंटर करूं। मैंने बताया मैं तुम मुसलमान सेफ हूं, खेल तुम्हें रहे हो। हजम नहीं होता। नहीं तुम सेफ खेल रहे हो तुमसे ना। हजम नहीं होता। नहीं हजम मुझे मुसलमान क्यों लफ्ज होगा तुम्हें भाई? हजम नहीं होता। नहीं मैं मुझे मुसलमान हजम हूं। नहीं होगा कि मैं तुम्हें खेलने दूं से एक लफ्ज का जवाब तो ये है कि मैं मुसलमान हूँ भाई। ये तुमसे हजम नहीं होता। अगर नहीं हजम होता फिर मुझे जवाब देने नहीं दो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा अगर बिल्कुल नहीं। मतलब फिर तुम्हारी मर्जी का जवाब मैं दूं, फिर वो मुझे बता दो कि ये लफ्ज बोल दो मेरे जवाब में। बेटी उड़ गई। हाँ दोबारा बताइएगा आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा कि या तो मेरी तरफ से खुद लफ्ज बोल दो जो तुमने बोल दिया है, भाई आप मुझे बता दो आप कौन हो। अगर मैंने जवाब देना है ना तो मैं आपको बरेलवी किताबें दूंगा। अगर आप बोलोगे आप देवबंदी हो, मैं आपको देवबंदी की रेफरेंस दूंगा। अगर आप बोलोगे कि मैं अहले हदीस हूँ तो मैं आपको अहले हदीस का। ये तो तुमने नहीं सोचा देखो हुआ यार, है कि आप तुम ना जब आप मैं ऐसा बरेलवी कहूंगा तुम मुझे बरेलवी की पर्ची दोगे, जब मैं देवबंदी कहूंगा तुम मुझे देवबंदी की कोई पर्ची निकाल के दोगे। मैच नहीं खेल सकते। ये तो तुमने सोचा हुआ है, लेकिन घर से जो कुछ सोच के आते हैं वो थोड़ी होता है। मैच में कई दफा बाल जो है अनएक्सपेक्टेडली बाउंस हो जाती है, भाई मुझे अब कभी यॉर्कर आ जाता है, कभी गुड लेंथ आ जाती है, पता है ना, कभी शॉर्ट पिच आ जाती है।
जो कुछ हाँ, तुमने पता घर से तो सोचा भाई, था ये तो कि पता होता मैं है कि पूछूंगा आगे- तो वो मुझे आगे कहेगा भाई, या ये तो मुझे पता कहेगा होता है कि बरेलवी, आगे या मुझे opponent कहेगा कौन है? देवबंदी, नहीं या आगे मुझे opponent- कहेगा वहाबी, या मुझे कहेगा सुन्नी, मैं उसके मुताबिक बात कर। ये भाई, तो तुमने मुझे घर से mute सोचा था ना। अगर म्यूट किया मैं जब तुम मैदान में बात करने के लिए आए हो तो यहाँ नहीं तो नहीं उस मैं तरह बात नहीं होगा करने के जो लिए तुम आया तो घर मेरे को से मेरे सोच के जवाब आए दो हो। ना भाई। आमिर साहब आपने जो तुम घर तो से मुझे बता सोच दिया, लो, आपने ये मैं नहीं म्यूट बताया कि करने टीम लगा कौन सी हो। आप मेरी बोला बात सुनो। हमें खेलो हाँ, मैं मुझे बता- नहीं पता मैं साउथ अफ्रीका हूँ या मैं इंडिया हूँ या मैं इंग्लैंड हूँ ऑस्ट्रेलिया हूँ, मैं हमें खेलो भाई। कैसे खेलूं मुझे बताओगे तो मैं खेलूंगा ना तुम्हें। अभी आपने ठीक। बात की, आप तो बॉल गिना रहे हो मुझे, बॉले तो मैं आपको दूंगा। पहले बताओ इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड, कौन सी टीम हो तुम? ओके, ये हो बात गई आपको बात? समझ नहीं आ रही। बोले जा रहे हो हो गई बात, कर लिया सवाल है। यार मुझे देखिए आमिर भाई, एक काम करता हूँ मैं आपको पूरा चांस देता हूँ। अब आप अपने दोबारा आईने के सामने खड़े हो जाएं, खुद से बातें करें। आप इस मूड में ही नहीं है कि आपने कोई हेल्दी डिबेट करनी है, आपने सिर्फ लान तान करने के लिए बैठे हुए। इट्स अप टू यू, बट मेरा अखलाक ये है कि मैं यहाँ पे किसी को गालियाँ नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा भाई आप खुश रहो, बस खत्म हुई बात। नज़ीर भाई को मैं सुनकर आया था, अहमदाबाद से। अब भाई आप मुझे भले म्यूट करना चाहें। क्या उस वक्त से चूरन की तरह वो बात कर रहा है, जैसे चूरन बेचना? कोई बात नहीं, सब चुप करो भाई। जब बात खत्म कर लो हर बंदा आपको जवाब नहीं देना होता, आपको चूरन बेचने वाला लगता है, कोई मसला नहीं है। हम W18 पे कराची में खड़े होकर चूरन नहीं बेचते, सिंपल सी बात है। चलें आप चुप कर जाए ना यार, बात चलो, हम सब चुप क्या करो। कर रहे हैं? नहीं, कर लेंगे। जब बात खत्म होगी बता देना भाई। हो गई भाई बात खत्म, मैं कर लूं। मेरी बात के I'm not even listening. मेरी बात के बीच में तो नहीं बोलोगे ना। बात ये है कि ये घर से सोच कर मिर्जाई ये आता है कि जब मैं किसी से पूछूंगा कि बताओ तुम कौन हो, अगर वो कहेगा बरेलवी तो मैं फौरन बरेलवियों की पर्चियां मैंने दाएं फोल्डर में रखी हुई है वो निकाल लूंगा। वो कहेगा मैं देवबंदी हूँ तो मैं बाएं फोल्डर से देवबंदियों वाली पर्चियां निकाल लूंगा। वो कहेगा मैं वहाबी हूँ, मैं वहाबियों वाली निकाल लूंगा। वो कहेगा मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, तो मैंने पर्चियां बना के रखी हुई हैं, मुझे मरब्बी ने बना के दी हुई हैं, मैं उसके मुताबिक उसको टैकल कर लूंगा। लेकिन ये वो बात है जो आप घर से तैयारी करके आते हो। लेकिन जब आप किसी खत्मे नबूवत के मुजाहिद के सामने आते हो ना, तो बच्चे इस तरह नहीं होता कि जो आप घर से सोच के आए हो वही जवाब आगे से मिलेगा। जवाब कई बार ऐसा मिलता है जो आप घर से सोचकर नहीं आए। तो जूते कपड़े यहीं आपके पड़े होते हैं और आप निकल जाते हैं। ये देख लो पड़े हुए हैं जूते कपड़े, और जूते कपड़े तो ले जाओ, अपनी पैंट तो ले जाओ, अपना पजामा तो ले जाओ बच्चे। मिर्जाई, हेलो मिर्जाई साहब, हेलो। और यार अपना पजामा तो ले जाओ, पजामा भी गीला है, नापाक है जो तुम छोड़ के भागे हो। घर से सोच के जो तुम आए थे, जरूरी नहीं है कि तुम्हें सामने वाला वही जवाब दे। आइंदा जब अगली बार आओ ना तो ऐसी तैयारी के साथ आना। मन वो दी गल का जवाब दे लेंगे, तू खामोश हो जाना, फिर तेरी बारी सुन लेंगे। ओ फिर तेरी बारी सुन लेंगे। मुंह बंद कर मिर्जाई, मुंह बंद कर। ओदी गल दा मैं जवाब दे लेंगे, उन्हें मैं मुकम्मल मौका दिता गल करन दा। जब तक उन्हें माइक म्यूट नहीं कर लिया मैं नहीं बोलिया। सुन लो, बहुत बोले हो। हुण चुप कर जाना। नहीं आप जब तक मैं ओदी गल दा जवाब नहीं दे लेंदा, आपने क्यों से तू शुरू हो गया। चल मैं तेरी बारी भी म्यूट कर लेना, तू अपना रज के जहर कट ले। मैं म्यूट करने लगा, तू अपनी गल पूरी करके नज़ीरे किया कि आप कौन हो, नज़ीरे गल अपनी पूरी करके फिर माइक म्यूट कर ले। नहीं अपना क्यों नहीं बताते हो, सफिर का क्यों पूछा आपने? आते ही पहले आपने क्वेश्चन किया आप कौन हो। आपके क्यों कान खड़े हो जाते जब भी कोई आता है अहमदी बराड़ पे या कोई भी गैर आते हैं तो आप लोग कौन एकदम बताओ जल्दी बताओ आप कौन हो। उससे तो पहले आपने पूछ लिया कि कौन हो। अपना फिरका बताते हो क्या मसला, दुम पे पाँव आ रहे, बताओ ना गैरत है तो पहले अपना दीन जाहिर करो कि कौन से फिरके से, जो 72 गुमराहों में से कौन सा फिरका है आपका, एक गुमराही अपनी बताओ, फिर उस पर बात करो आके। बहुतों ने किताबें पढ़ ली हैं, खोते के ऊपर लाद ली हैं बहुत सारी किताबें, इल्म तेरे पास बहुत आ गया है, तू बहुत इल्म वाला बन गया। दूसरा ऐसे क्वेश्चन और अपना दफा तू ये हो गया तो वो हो गया, तो कभी लेफ्ट जा रहा है कभी राइट जा रहा है। हिम्मत है बताओ अपना फिरका अगर गैरत है तो, कि कौन से फिरके से तेरा ताल्लुक है। हम मुसलमान हैं, तुम सब 72 मुसलमान हो। अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी थी 72 पे, अपने पर लानत कबूल करो कि हम लानती लोग हैं।
दूसरों से क्वेश्चन करते हो, हम पर दिन रात क्वेश्चन है कि कौन हो। आप पर कोई आप पर जो है अल्लाह के रसूल ने फतवा दिया है कि 72 गुमराह जहन्नमी हैं। अपना तारुफ कराओ कि हम जहन्नमी हैं, फिर हमसे सवाल करना। इसके और करनी है बात है। अब मैं बोलने लगा, वो मेरी बात के बीच में माइक न खोलना। तुम वो गंदी कौम हो, तुम वो लानती और कज़्ज़ाब हो कि तुम अपनी हकीकत लोगों को बताते हुए शर्माते हो। हकीकत ये है, दर हकीकत तुम मिर्जाई हो, तुम कादियानी हो, तुम मिर्जाई हो, तुम उस दज्जाल के पैरोकार हो जिसने झूठा नबूवत का दावा किया है। और तुम्हारे घर में अपने में इतने टुकड़े पड़े हुए हैं कि जूतियों में दाल बट रही है। तुम मुसलमानों से सवाल करते हो कि मुसलमान किस फिरके से है। मुसलमान मुसलमान है और तुम गैर मुस्लिम हो। तुम्हारा क्या हक है कि तुम किसी मुसलमान को उसका मकतबा फिक्र पूछो, कोई मसलक पूछो, कोई फिरका पूछो। जब तुम्हें बता दिया कि मैं वो मुसलमान हूँ जिसको तुम्हारा 2 नंबर खलीफा कहता था कि जिसने मेरे मसीह मौद को नहीं माना वो काफिर, बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है, मैं वो हूँ। अब बताओ मैं कौन हूँ? मैं देवबंदी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं हनफी हूँ, मैं शाफी हूँ, मैं मालकी हूँ, मैं हम्बली हूँ, मैं जो भी हूँ मैं वही हूँ जो तुम्हारे मसीह मौत को झूठा मसीह मौत समझता है, दज्जाल समझता है, कज़्ज़ाब समझता है। तो अब बताओ कि इसके लिए मजीद पहचान की क्या जरूरत है? जब बता दिया तुमने, तुम्हारे खलीफा 2 नंबर ने बता दिया कि जो भी मसीह मौत को नहीं मानता वो ऐसे ही काफिर है जैसे कोई मूसा अलैहिस्सलाम को ना मानकर काफिर होता है, ईसा अलैहिस्सलाम को ना मानकर, नबी अलैहिस्सलाम को ना मानकर काफिर। जब तुम्हारे पास मेरा तारुफ मौजूद है कि मैं तुम्हारी नजर में काफिर हूँ और दायरा इस्लाम से खारिज हूँ, तो मेरा किसी भी मसलक से ताल्लुक हो, मेरा किसी भी ग्रोह से हो, तुम्हारी तो मेरी एक ही कैटेगरी है कि मैं तुम्हारे उस झूठे मसीह का मुनकिर हूँ, उसका इनकार करने वाला, उसको झूठा समझने वाला। और क्या तुम्हें चाहिए? हकीकत यह है कि तुम अपना तारुफ खुद नहीं करवा सकते। तुम लोगों को खुद बताते हुए शर्मिंदा हो कि तुम वो गंदी कौम हो जो उस वक्त तक, जब तक तुम्हें बरतानिया की आशीर्वाद हासिल थी, तुम लोगों को कहते थे कि जो हमारे मसीह मौत को नहीं मानता वो काफिर, बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। लेकिन जब पाकिस्तान बना और तुम्हें मजबूरन पाकिस्तान आना पड़ा और मुसलमान का डंडा तुमने देखा, मुसलमान का छितर तुमने देखा, तो तुमने यहाँ आकर दायरे बनाने शुरू कर दिए और मुसलमानों को कहना शुरू कर दिया मैं 73वां फिरका हूँ, तुम 72 फिरके हो, मैं भी मुसलमानों का एक फिरका हूँ। पहले तो ये कहना शुरू किया कि मैं भी मुसलमानों का एक फिरका हूँ, तुम भी मुसलमान हो, तुम भी मुसलमानों के मुख्तलिफ। किधर गया है? ओए अपना पजामा तो ले जाओ, और गीला गंदा पजामा यहाँ छोड़ के भाग गया नजीरे। यार ये बदबूदार पजामा तो ले जाते, तुम्हारी तो जूतियों में भी वो पड़ी हुई है, तुम्हारा पेशाब पड़ा हुआ है। ये नीचे गालियां दे रहे हैं, इनको म्यूट करें, जरा नजर रखें नीचे। जब मिर्जाइयत की छतरौल होती है, मिर्जाइयत गालियां देती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को गालियां दे रहे हैं, सहाबा को गालियां दे रहे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गालियां दे रहे हैं। ये वो लानती कौम है। जिस तरह मैंने बताया कि जब इनकी मिर्जाइयत की छतरौल होती है, फिर ये नीचे आकर पैगम्बर इस्लाम पर बकवास करते हैं, भौंकते हैं, फिर सहाबा पर भौंकते हैं, फिर किसी का नाम ले लेकर उम्महातुल मोमिनीन पर बकवास करेंगे, भौंकेंगे। ये वो गंदी गलीज कौम है जिसकी नजासत और गंदगी से अल्लाह की धरती नापाक है। इस अल्लाह की धरती को पाक कर दो, अपने निजस वजूद को। अब बरतानिया से आगे समुंदर है ना, उधर छलांगे लगा दो, लानतियो, उधर छलांग लगा दो। पाकिस्तान से तुम धक्के खा के यहाँ पहुंचे, अब यहाँ से तुमने निकलना है तो कहाँ जाना? आगे समुंदर है, छलांग लगाओ, मरो, अल्लाह की धरती को पाक करो, अपना ये गंद लेकर दफा हो जाओ। जब तुम्हें मुसलमान मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है, तुम मुसलमानों से फिरके पूछते हो। कहता है मैं सवाल करूंगा, तुम बताओगे बरेलवी हो तो मैं बरेलवी की पर्ची निकाल लूंगा, तुम कहोगे देवबंदी हो तो मैं देवबंदी की पर्ची। पुत्र का रूह सोन के आया ना। ये तो तेरी अम्मा जी ने, तेरे अब्बा जी ने तुम्हें बताया होगा ना कि जब तुम जाओगे मौलवी से बात करोगे तो या मौलवी ये जवाब देगा या मौलवी वो जवाब देगा। लेकिन वो पता है, वो शेर को ना बिल्ली ने शिकार सिखाया, उसके बाद शेर बिल्ली के पीछे लगा तो बिल्ली चढ़ गई दरख्त पे।
तो उसने कहा अम्मा बाकी सारे तो तूने करतब सिखाया, ये नहीं सिखाया था दरख्त पे कैसे चढ़ना है। तो पुत्र तुम्हें जो करतब घर से सिखा के तुम्हें भेजा गया है ना, तुम्हें वो करतब इन्हें सिखा के भेजा गया जो मौलवी के पास है, जो गुर मौलवी के पास है। इसका इलाज तुम्हारे पास नहीं था, इसलिए तुम दोनों मिर्जाई यहाँ पर अपने गीले पजामे छोड़कर भागे हो। अपने मिर्जाई मुरब्बी को लेकर आओ और उसको कहो मुझसे पूछे मैं कौन हूँ, मेरा तारुफ क्या है। मैं मुसलमान हूँ और मेरी नज़र में तुम मुखरज मिनल मिल्ला, दायरा इस्लाम से खारिज एक गैर मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, जिसको पाकिस्तान के कानून में भी माइनॉरिटी करार दिया गया है और हिंदुस्तान में भी 200 के करीब उलमा ने 1891 में तुम्हें काफिर करार दिया था, दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया था। पता क्यों? इसलिए कि तुम वो लानती कौम हो, तुम वो गंदी कौम हो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर खासे पर डाका डालने वाले डाकू हो, चोर हो, तुम भगौड़े हो उम्मत के। पैगंबर इस्लाम के हर खासे पर तुमने डाका डालने की कोशिश की है। नबी इस्लाम का खासा है, कुरान में आता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तुम्हारे मिर्जा साहब ने कहा ये मेरे पर इल्हाम नाज़िल हुआ है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारे पैगंबर का खासा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, अल्लाह की वही के बगैर वो बोलते ही नहीं। तुम्हारे मिर्जा साहब ने इस पर भी डाका डाला और कहा कि मैं वो हूँ जो अल्लाह की वही के बगैर बोलता ही नहीं। हमारे नबी का खासा है कि मसीह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए खबर दी और कहा व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा, उनकी मैं तुम्हें बशारत देकर जा रहा हूँ। और लानतियों तुमने कहा ये इस्मो अहमद वाला हमारा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। तुमने हमारे नबी का कौन सा खासा छोड़ा? आयत सूरह आले इमरान की 81 नंबर आयत है, आयत मिसाकुन नबीयीन मशहूर आयत है, जिसमें सारे नबियों से अहद लिया गया कि जो कुछ तुम्हें किताब और हिकमत से दिया गया है, जब तुम्हारे पास मुसद्दक रसूल इसकी तस्दीक करता हुआ आए जो तुम्हारे पास है, तुमने क्या करना है? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ह, तुमने उस मुसद्दक रसूल पर ईमान लाना है और उस मुसद्दक रसूल की नुसरत करनी है। और लानतियों और डाकुओं तुमने कहा इससे मुराद हमारा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। और हमारे नबी का खासा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकन सुजदा। ये हमारे नबी का खासा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथी आपस में बड़े नरम हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और कुफ़ार के लिए बड़े शदीद हैं। ओ हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमन। और ये वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। तुम्हारे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह में इस आयत में मुझे मोहम्मद कह के पुकारा गया है। और लानतियो, और तुम वो मुखरज मिनल मिल्ला कौम हो जो पैगंबर इस्लाम की दुश्मन है, जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर खासे पर डाका डालने वाले लानती हैं। तुम वो हो जो कहते हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दाखिल हो गया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में मिर्जा कादियानी दाखिल हो गया है। तुम वो गंदी कौम हो। आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरा कौन सा फिरका है। आओ मैं तुम्हें बताऊं अपना तारुफ। किसी बड़े मरब्बी को लेके आओ पुत्र। तुम सालाना जलसा ही समझ लेते हो हर जगह। छोटा सा सवाल आसिफ चौधरी ने पूछा है भाई तेरे घर कितने ने लेके कराची सक्खर हैदराबाद टुर पे 10 मिनट मैंने सुना ये क्या बकवास करता जा रहा है। छोटा सा जवाब दो। नफरत नहीं होती थी। नफरत तुम्हारे इस गंद की वजह से नफरत है। तुम्हारे इस लिटरेचर की वजह से मुसलमानों के दिल में नफरत है। ये सुनी है बकवासें, ये सुना है गंद अपने लिटरेचर का। जो तुमने पैगंबर इस्लाम के खासों पर डाका डाला, जो तुमने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस्मत को हाथ डाला, इस वजह से मुसलमानों के दिलों में नफरत है। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं।
ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੂੰ कहने 80s में तो नफरत नहीं होती, लोगों को पता नहीं ना होता था। 80s में लोगों को पता नहीं था तुम्हारे गंद का। अब जैसे जैसे लोगों को तुम्हारे गंद का पता लगा है तो अब लोगों के दिलों में नफरत बढ़ती जा रही है कि इतनी गंदी कौम, इतनी गलीज कौम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन, इतनी गलीज कौम अल्लाह की धरती पे है ही कोई नहीं। और परसों की बात है, एक क्रिश्चियन से मुनाजरा लानतियों तुम्हारा हुआ, परसों की बात है, 2 दिन गुजरे, अभी मुझे कल जोसेफ ने वीडियो भेजी है, 2 दिन पहले मुनाजरा हुआ है वहां पर मीर लतीफ का, जोसेफ मसीह का, जो तुम्हारे मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब जंगे मुकद्दस में उस मुनाजरे का अहवाल लिखा हुआ है, तफसील उसकी लिखी हुई है रूहानी ग़ज़ाइन की 6ठी जिल्द में, जाके खोल के देखो जंगे मुकद्दस, उसमें झूठ बोला हुआ है कि